जेके खबर नौ के तमाम देखने वालों को रूपरथर का सलाम पहुंचे। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की अहम खबरों पर। इस खबर को पेश करने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं जिया बैकग्राउंड स्वीट्स मुतसिल जम्मू कश्मीर बैंक हैकुर अनंतनाग। पुलवामा में जुमा रात शाम को शुरू हुई मुसल्लह तसादुम आरई में 3 जंगजू जाँ बहक हो गए हैं। सरकारी जराये ने बताया कि जिले पुलवामा के चुबा उलर त्राल में जंगजू की मौजूदगी से मुतल्लिक खुफिया इतला मिलने पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने जुमा रात की शाम को इलाके को मौसरे में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू की। इस बीच जंगजू ने फोर्सेज एहलकारों पर गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में एक जंगजू मारा गया। फोर्सेज एहलकारों ने रात की तारीख के पेश नज़र ऑपरेशन को मुलतवी कर दिया, जिस दौरान जुमा के सुबह इलाके में दोबारा तसादुम आरई का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें मजीद 2 जंगजुओं को मारा गया। इस तरह इस तसादुम आरई में 3 जंगजू जाँ बहक हो गए हैं, जिनकी शिनाख्त होना अभी बाकी है। जी सर। Yesterday evening, we received a specific intelligence input from Jammu and Kashmir Police about unidentified terrorists in the village Chiva near Tral. Immediately mobilized and moved in a tactical and concealed manner and cordoned off the suspected area. Risk excesses on the local population. Harassment of the cordoning of this area. The terrorists fired on our troops and refuge in one of these houses. Our cordon was immediately resighted. After this, we did make attempts to induce surrender of these terrorists safely from that area and provided them security and escape. However, they were thwarted by own troops. We continue to lay cordon fight. They were neutralized by own troops. Warlike stores were recovered and handed over to the Jammu and Kashmir Police. During this entire operation, no civilian was injured or harmed. The Jammu and Kashmir CRPF successfully prevented the stone pelters from interfering in the operation. Consequently, forces against the terrorists. There is a repeated attempts to carry out attacks on innocent. Today afternoon, the terrorists carried out at Beach Bihara, where they started firing indiscriminately on a CRPF picket from hiding and thereafter fled. Firing, one poor innocent 6-year-old boy was killed. I condemn and I appeal to the parents to insulate their innocent civilians from these negative influences, of them from being misguided and going along the path of taking up arms. The future of our country and wonderful opportunities await them if they फलस्वरूप इनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन की भावना है, जिसकी वजह से ये कोशिश करते हैं इनोसेंट सिविलियन जो सिक्योरिटी। और आज का जो बीच बिहारा में इन्होंने कोशिश की है, इसी का सबूत है इनके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन उभर। See, our intent is to target the terrorist leadership so that this nefarious leadership is not able to pollute the innocent mind of our Kashmiri youth. And it's very evident, as you all have seen in the last few months, you've had immense success in neutralizing these terrorists. In recent months, इसके फलस्वरूप इनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन की भावना है, जिसकी वजह से ये कोशिश करते हैं इनोसेंट सिविलियन जो सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक करें। और आज का जो बीच बिहारा में इन्होंने कोशिश की है, इसी का सबूत है इनके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन उभर के बाहर आ रही है। इंटेंट इज टू टारगेट द टेररिस्ट लीडरशिप so that this nefarious leadership is not able to pollute the innocent mind of our Kashmiri youth. We are continuing with their effort, and it's very evident, as you all have seen in the last few months, you've had immense success in neutralizing these terrorists. Number of threats right now? Misguided youngsters, a couple of them who get recruited
take this wrong path, get neutralized in a couple of days, as also a couple of weeks also. So I don't think with the neutralization of these terrorists, I think we are on a path of peace and prosperity in the valley. Thank you. अनंतनाग के बिजबियारा इलाके में मुश्तबा जंगजुओं के हमले में सीआरपीएफ एहलकार और कमसिन बच्चा जाँ बहक हुआ है। जुमा को पातशाही बाग बिजबियारा में जंगजुओं ने सीआरपीएफ 90 बटालियन से वाबस्ता एहलकारों पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में सीआरपीएफ एहलकार हलाक हुआ है। महलूक सीआरपीएफ एहलकार की शिनाख्त शुमाल कुमार के बतौर हुई है। हमले में जाँ बहक कमसिन बच्चे की शिनाख्त नाहिन साकिन यारीपुरा कुलगाम के बतौर हुई है। फोर्सेज एहलकारों ने इलाके को मौसरे में लेकर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। So far, the information available is that this happened around 12:15 in the morning, and two people, they came on a scooty. They fired on the CRPF Jawan who was deployed here, and at that time there was a lot of movement of civilians on this route. So while they were fleeing from the spot, firing towards the forces, one civilian was also got injured, and subsequently he succumbed to his injuries. Now we are here, we are investigating the incident, and further details will be shared with you. Details will be shared with you. Sir, anything about who were the people who were riding on that scooty? So far nothing. The SSP has also come, so we are investigating the whole issue, and then it's डोडा में सड़क के एक अलमनाक हादसे में 3 बच्चों समेत 5 अफराद अजान हो गए हैं। गुल से रामबन की तरफ जा रही गाड़ी को रगी नाला के नजदीक हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार 3 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। कानूनी लवाजमात के बाद जाँ बहक शुदा अफराद को पुरनम आंखों से सुपुर्द किया गया। डोमिसाइल सर्टिफिकेट विड्रा करने में यहां के सियासी पार्टियां संजीदा नजर नहीं आ रही है। एक बयान में जम्मू कश्मीर के समाजी व सियासी शख्सियत सुनील डिम्पल का कहना है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट के खिलाफ वो भरपूर मजम्मत करेंगे। ताहम उन्होंने इल्जाम आयद किया कि वादी के समाजी जमातें इस हिसास मामले में संजीदा नजर नहीं आ रही है। देखिए, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, और ये एक ऐसा प्रश्न है जिसमें जम्मू कश्मीर की पूरी नक्शा खिंच जाता है और मौजूदा हालात भी इसमें सामने आ जाते हैं। आपका ये प्रश्न है कि अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर में अपना नींव पत्थर रख चुकी है जम्मू क्षेत्र में, और ये क्या भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी है? तो मेरा इसका संदर्भ में ये कहना है कि मुझे नहीं लगता कि अपनी पार्टी जो है ये भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी है, क्योंकि अगर हम पिछला इतिहास देखें भारतीय जनता पार्टी का, हम जम्मू क्षेत्र के लोग इसे हमेशा ए कैटेगरी की पार्टी बना करके भेजते हैं विधानसभा में, संसद में। आगे जाकर ये जम्मू कश्मीर का क्या हाल करती है, और खुद ये तमाम कश्मीरी सेंट्रिक पार्टीज की बी पार्टी बन जाती है। इसके लिए मैं आपको मिसाल देता हूं। जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब की हुकूमत बनी थी, तब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये भारतीय जनता पार्टी बी पार्टी बन गई थी, और उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इन्होंने अकॉर्ड कर लिया था, और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को इन्होंने मिनिस्टर ऑफ होम भी बनाया था, और कभी फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर बनाया। तो उस समय आप बताइए कि बी पार्टी कौन सी हुई, जबकि जनादेश जम्मू से लिया था। फिर उसके बाद 2014 का आप ले लीजिए कि हम जम्मू के लोगों ने 25 विधायक और 3 संसद चुन करके भारतीय जनता पार्टी के ए टीम बना करके भेजे कि इनका मुख्यमंत्री बने, लेकिन फिर भी। खबरों को मजीद आगे बढ़ाने से पहले यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर सा तजारती वक्फा, जल्द लौटेंगे।
जिया बेकरी एंड स्वीट्स। हमारे यहाँ ताजी और लजीज बेकरी व मिठाई हर वक्त दस्तयाब है। इसके अलावा डिस्पोजल क्रॉकरी मुनासिब कीमतों पर दस्तयाब है। तशरीफ लाएं जिया बेकरी एंड स्वीट्स, नजदीक जम्मू कश्मीर बैंक, हकुरा, अनंतनाग। फोन नंबर 979797 3412 700643341। वक्फे के बाद आप सभी का खैर मकदम है, पेश है बाकी खबरें। हरमाटपुरा देहरादून के बाशिंदगान ने आज इजाफी बिजली बिलें और अरसाल करने के खिलाफ एहतजाज किया। मकामी लोगों के मुताबिक इलाके में 100 किलोवाट ट्रांसफार्मर नस्ब है, जो आबादी के लिहाज से काफ़ी नहीं है। अगरचे महकमे की जानिब से 250 किलोवाट ट्रांसफार्मर लगाने का लोगों को यकीन दिलाया गया था, ताहम आज तक उसे नस्ब नहीं किया गया। लोगों के मुताबिक उन्हें महकमे की जानिब से पहले ही 800 रुपये की बिलें वागुजार की गई। इधर महकमे का कहना है कि लॉकडाउन के बायस वो ट्रांसफार्मर अभी तक इलाके में नहीं लगाया गया। अलबत्ता इजाफी बिलों पर नजरसानी की जाएगी। नाम मोहम्मद अशरफ शेख कि रोजान दहरन मांडपोर अगर अकिस मकान 15,000 रुपये 16,000 रुपये बिल गो यीचा बिल कारखाना अगर लड़कं 4 साने द्रामित तम AEE सबस नश योतन आमित अगर यमो रुपये लक्ष अम खतर जमा कोर या रुपये 1.5 लाख को जमा गो सह 1.5 लाख रुपये अगर यमो कत करो दिमो 200 kV ट्रांसफार्मर रेत कि खतर रेतस यी वोट बिल खड़ो सा तुम अगर यमो लाइन दर्ज कर राशन कार्ड अड़न कमर ना समझ यमो कत पे 15,000 रुपये 16,000 कत पे बिल 4 रेतन मे वो लाख रुपये कत खतर यमो कर्मुत अमे खतर जमा यमो दप लड़को 4 अपर रुपये 2 लगन या रुपये क्या लगन करो ट्रांसफार्मर अनो गो नोवे पत वो यमो दप नोवे ना क्या दिन ये दफ्तर पे ट्रांसफार्मर अगर यम पोस जमा कर या बे चाहे जमा कर तमो मन तम 4 तमो मन ये कहीं वनकन अवेलेबल AEE सब ना कह वनकन वो अम तुम करो लांच यमो 4 लड़का करो FIR गो गाँव अथ मज कतल केसन तमिक जिम्मेवार AEE सब तमिक जिम्मेवार रूज जिम्मेवार अगर गाँव में लड़ाई बे राशन कार्ड वारे अगर अकिस मकान में 4 बे वार बसान बिल कत पे आए वनकन 14,000 रुपये 13,000 रुपये 16,000 रुपये 3 रेतन मज राशन कार्ड बिल कत पे आए डबल नाव डबल बिल वनकन 4 नफर क्या जानी और करो तुम कंटेक्ट वो काल पे तुम करो सा 2 दह तुम करो सा 2 दह करो पान आज वो 4 रेत कर दिस बिल पान यमो था बिल बिल ये बिल वनकन सारे अगर ब्या गाँव बनकन दौरान तमें गाँव लाइन अगर दिन सा लिस्ट अगर यीचा बिल यमो लाइन ये थाम मगर वनकन ये बिल कहें बे गाँव बिल डबल बिल साने बाकिस थक यूत डबल फीस बिल बाकी गाँव सोन यसन अगर अकिस नफरस मोल तो गुजरमुत तमिस आए बिल तमिस वनकन गमित 20 वरी गुजरमत सोन गाड़ो इंसाफ कर साने खतर यह फीस कर जेनवन कर तक वेरिफिकेशन अगर मकानस में 4 कमर वो 4 कमर शुमना 800 रुपये फीस टाउनस मज वनकन 520 रुपये फीस 24 घंटे पावर 5 घंटे पावर रोजान बे वात अकिस मकानस 14,000 रुपये फीस कर सर्च तन वचन जेनवन क्या ती कर इंसाफ कर बाकी अप्लाई कोर्मुत वो तुम पोस कन जमा ठीक अगर गाँव में कह पोस जमा कर खतर क्या पोस पोस मंगान लगन ठीक अगर डिस्ट्रिक्ट पोस पे तमिस वन क्या पोस पहले ये बताइए इन्होंने ये पैसे क्यों दिए हैं और किसको दिए हैं। ठीक अगर वो अपने मारने वाले हैं इनको पैसे लिए हैं तो ये है इन्होंने खुद दिए हैं उसके लिए हमारा ऑफिस तो जिम्मेदार नहीं है। इन्होंने अप्लाई किया था कि हमें 100 kV के बजाय 250 kV ट्रांसफार्मर डलना चाहिए। ठीक जब हमने उसकी फिजिबिलिटी बनाई तो फिजिबिलिटी बन नहीं पा रही थी क्योंकि लोड कम था 100 kV उसका इंस्ट्रक्शन था। हमें बार इसको कहते थे कि हमें दिक्कत हो रही है, हमने कहा कि फिर तो आप लोगों को लोड बनाना पड़ेगा जी। अगर लोड बढ़ेगा फिर फिजिबल हो जाएगा 250 kV लगाना है। सही बात है। इन्होंने ये मशवरा किया बिल्कुल गाँव वालों ने सब इनके जो ठेकेदार वहाँ बने थे तो कहते हैं कि हम पैसे दे रहे हैं क्या कुछ दे रहे हैं ठीक उनको आगे भेज दिया बिल्कुल ठीक है हम थोड़ा बहुत 100-200 रुपया इसमें अगर बढ़ भी जाए तो हमारा मसला हल हो जाएगा। ठीक तो फिर हमने लोड एंटर करके फिजिबल ट्रांसफार्मर हुआ 250 kV के लिए और हमने इनके आप में वो दिया और
आगे भेज दिया डिवीजन ऑफिस में। ठीक। इसी दौरान में लॉकडाउन हुआ। जहाँ भी फाइल है पता नहीं है, मेरे को भी पता नहीं है फाइल की कहाँ है अभी। ठीक। हाँ, अब इन्होंने कहा कि हमें ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करने के बगैर ही फीस तो चढ़ गया। मैंने कहा था कि यही है, आप लोगों ने खुद करवाया है ये। ठीक है, आप अपना एप्लीकेशन लिखो, कितने घर इसमें है, हर एक का ID लिखो। जब तक आपका ट्रांसफार्मर नहीं लग जाएगा तब तक कोई पुराना फीस रह जाएगा। यही दूसरी बात, अब कोई मेरा दोस्त कह रहा था कि एक ही मकान में 4 घर है, उनको एक कमरे की बिल आई है। उसको मैं ये मशवरा देता हूँ कि वो इकट्ठे फिर अलग अलग ना हो जाए, इकट्ठे पकाए एक ही चूल्हे पर, हम एक ही रहे रखेंगे। अलग अलग बैठेगा कमरों में, राशन कार्ड उसको नहीं मिल रहा है। राशन कार्ड और ट्रांसफार्मर को इसके क्या जरूरत है? इसका कनेक्शन अलग है, इसको अलग इसका लोड देखकर इन्होंने खुद लोड चढ़ाया है कि भाई हमें ट्रांसफार्मर चाहिए। एज पर रिक्वेस्ट हमने इनको वो एंटर किया है। अब हम ये कहते हैं इनको, अगर जब तक इनका ट्रांसफार्मर नहीं आएगा, इन्होंने वो लॉकडाउन की वजह से इनका कागज रुक गया है, पता नहीं कहाँ रहे वो इसके पीछे थे, वो ठेकेदार मर गए थे, उनको कोई पता नहीं कौन पैसे ले रहा है, किस भेजे हैं। नहीं, जो उसने जो सर मेरी बात सुनो, जो इनका कहना है कि जिन्होंने पैसे जमा किया है लगभग, वो आपका कहना है कि हमें उसके साथ कुछ नहीं, ना हमारे पास वो पहुँचे। ये सबसे मुबारक वालों ने जमा किया है, मैं चाहता हूँ किसको दिए गए इन्होंने। तो जो लॉकडाउन के कारण जो ट्रांसफार्मर रुका हुआ है, जो लॉकडाउन के कारण जो ट्रांसफार्मर रुका हुआ है, अब इनकी बिलें जो आई है, तो ये कैसे ना इनके पास इनको बोले कि भी इनको कहा कि आप अपना एप्लीकेशन लगाए, वहाँ पर ID साथ रखे, जब तक आपको ट्रांसफार्मर नहीं मिलेगा तब तक आपको पुराना ही भरना पड़ेगा। ठीक है, ठीक। इनसे पूछो मैंने ये कहा या नहीं, इनसे पूछे जरा से करो अभी। ठीक। तो आपका कहने के मुताबिक इनको क्या करना चाहिए कि जब तक ट्रांसफार्मर ना आए तब तक जो है, जो इनकी ID है पुराना भर सकते हैं। हाँ, पुराना। और मैंने इनको ये भी कहा कि अपने हिसाब से आप देखो, उतना ही भरो जो हमने चढ़ाया है। जब पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर नहीं आया है तब तक हम इसका लोड एनालिसिस नहीं करेंगे। ठीक। तो फिर कैसे, अगर सर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर ट्रांसफार्मर नहीं है, ठीक है सर, तो ट्रांसफार्मर के बगैर लोड कैसे एनालिसिस हुआ इनका, मतलब बिल कैसे आ गई? देखिए, जब तक लोड एनालिसिस सही हो जाएगा तो ट्रांसफार्मर की वो फिजिबिलिटी तो नहीं बन पा रही थी जी। हम आगे तो नहीं देख सकते थे कि इनका लोड, डिमांड की इतना लोड इतना बढ़ गया है, इन्होंने किया है, तो आगे फाइल मिलेगी। फाइल अगर फिर लोड वापस आएगा तो फाइल फिर रुकेगी, क्योंकि वो फिजिबल नहीं है। चलो सर, आपका मतलब, आपका कहने का मतलब ये है कि ये कहते हैं कि एक कमरे में अलग जो रहता है उसकी बिल अलग आएगी। तो जब तक ट्रांसफार्मर इंस्टॉल नहीं होगा, फिर इसके बाद जो इन्होंने लोड जो है रखा है उस हिसाब से इनको बिल आएगी, तब तक के लिए जो है पुराना भर सकता है, जो पुराने ID नंबर जो इनके पास होगा वो पुराना ही बिल भर सकते हैं। वो इसके साथ हो रखे। मगर एक चीज सर, हम ये इनका ये लोड हम वापस वो करेंगे, उसमें और एक चीज आएगी यहाँ से ऑफिस, जो कि फिजिबिलिटी यहाँ से गई है उसको रोकना है। ठीक। और इसमें सर मुझे ये बताइए, जो पैसों का मामला इसमें है, आपका कहने के मुताबिक हमें उसमें कोई इंटरफेयर नहीं है, जिन्होंने जमा किया है वो इनके खिलाफ FIR करे। किसको दिए हैं, कौन ठेकेदार उनको गाँव में लिखे हैं, जो इनको अभी इस वक्त साथ नहीं है। ठीक। हाँ, वो साथ नहीं है, सही बात। हाँ, उनको ये पता है कि किसको लेके इन्होंने पैसे दिए, हमें कहा था किसी को। चलो सर, शुक्रिया बात करने के लिए सर। ये दोनों इसमें मुलवस हैं, ये देने वाले भी और लेने वाले भी, उनसे लीजिए कि ये कौन है, कौन जमा करते हैं इसके साथ कोई। चलो सर, शुक्रिया। भारतीय जनता पार्टी जिला सदर कुलगाम आबिद खान ने गुज़श्ता रोज चंद पंचों और सरपंचों की जानिब से उनकी किरदार कशी पर सख्त राय अमल का इजहार करते हुए कहा कि वो किसी भी सूरत में घपलाबाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मीडिया से बात करते हुए आबिद खान ने यूं कहा, वो बौखलाए हुए हैं, क्योंकि जब एक्स MLA मोहम्मद अमीन भट्ट साहब का स्कैम स्ट्रीट लाइट्स का ओपन हो रहा है, और ऐसे काम भी है जहां पर पिछले कांग्रेस के वर्करों ने
दो बार बिल निकाले, कभी नरेगा के नाम पे, कभी सिटी पंचायत के नाम पे, कभी एमएलए फंड के नाम पे। अब जब वो स्कीम सामने आ रहे हैं, वो बौखलाए हुए हैं और कांग्रेस के इशारे पे चंद 5 सरपंच ने वहां पे प्रोटेस्ट किया, उससे कोई फर्क पड़ने नहीं वाला है। और जो भी करप्टेड पर्सन होगा, ही विल बी, जिस केस में वो इन्वॉल्व होगा, अकॉर्डिंग टू लॉ उसको पनिशमेंट मिलेगा और उसके खिलाफ एफआईआर भी लॉन्च होगा। वो मेरा सरपंच क्यों ना हो या किसी और पार्टी का 5 सरपंच क्यों ना हो, अकॉर्डिंग टू लॉ एफआईआर लॉन्च होगा और उस 5 सरपंच को ही विल बी टर्मिनेटेड फ्रॉम द सेम पंचायत। जिले शुपियां के दूर दराज इलाके रामनगरी और जमनगरी के लोगों ने इलाके में बैंक शाख कायम करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि इलाके में बैंक शाख न होने की वजह से लोगों को सख्त मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से अपील की है कि इलाके में वसी आबादी के पेश नज़र जम्मू और कश्मीर बैंक की शाख कायम की जाए। मुर्तज़ा माकुल शाह बोल रहा हूँ। तो मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। गाँव का नाम है रामनगरी शोपियां। तो सबसे बड़ा, एक्चुअली ये सबसे बड़ा गांव है डिस्ट्रिक्ट शोपियां में। आबादी के लिहाज से भी सबसे बड़ा गांव है और शोपियां से यहाँ तक तकरीबन 9 किलोमीटर है। पहली जो हमारी डिमांड थी वो है जम्मू कश्मीर बैंक, क्योंकि जम्मू कश्मीर बैंक 2012 में उन्होंने कहा था कि ये सेक्शन हुआ है। 2012 से लेकर आज तक ना हमने कभी बैंक देखा है, ना तो यहाँ पे ATM ही है। तो बहुत मुश्किलात है हमारे गांव में बैंक के लिहाज से, क्योंकि हम आपको तो पता ही होगा कि यहाँ का जो काम जो है वो सेबों के साथ वाबस्ता है, क्योंकि अब बैंक में या दिल्ली से यहाँ तक ट्रांसफ़र हमने विहिल जाना पड़ता है या शोपियां, यहाँ से 9-10 किलोमीटर जाना पड़ता है दूर। आप यही देखें कि विहिल जो है वो तकरीबन इससे बहुत छोटा गांव है, वहाँ इन्होंने दिया है बैंक, या और कई जगहों पे जो छोटे छोटे गांव हैं उन्होंने बैंक दिया है। लेकिन ये सबसे बड़ा गांव है डिस्ट्रिक्ट शोपियां में। यहाँ ना तो बैंक है, वो तो ना ही ATM है। इसका कुछ कीजिए, क्योंकि हमें यहाँ बैंक की बहुत अशद ज़रूरत है। बैंक हमें चाहिए और बैंक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारी इस गाँव में। गुजारिश करता हूँ सरकार से, जो रिश्नगरी गांव है और जो रामनगरी गांव है, ये हमारे इलाके शुपियां में सबसे बड़े 2 गांव हैं जहाँ पे ये बैंक की फैसिलिटी नहीं है, ATM कार्ड की फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पे होनी चाहिए। मैं DGM मतलब बैंक के मैनेजर, चीफ मैनेजर से, CEO से रिक्वेस्ट करता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि रिश्नगर में और रामनगरी में कम से कम एक बैंक होना चाहिए और एक ATM होना चाहिए। इतने बड़े इसके क्या मतलब जो इलाका है, सिद्धों से आता है इलाका इसका, और बाकी जो दूर दूर बस्ती रहती हैं बेचारे, इनका बहुत परेशानी होती है। गाड़ियाँ भी नहीं मिलती इनको। जब भी इनको आता है कि 1000 रुपया निकालने के लिए इनको शुपियां में आना पड़ता है, इनको 100 रुपया लगता है किराया बेचारों को। अब वहाँ पे बैंक फैसिलिटी होनी चाहिए, खासकर जमुननगर में और रिश्नगर, दोनों गांव ये बहुत बड़े गांव हैं, वहाँ पे मतलब ये बैंक फैसिलिटी होनी चाहिए। दूसरा मेरी रिक्वेस्ट, इसके साथ ही दीजिए अपने मेजबान को कल तक के लिए इजाजत। आप जहां भी रहे खुश रहे, सलामत रहे और हमारी YouTube चैनल JK खबर सब्सक्राइब करना ना भूलिए और हमारे Facebook पेज को लाइक करना ना भूलिए।